नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा। यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान। और साहिबाबाद पुलिस ने पकड़े लुटेरे, कई राज्यों में कर चुके वारदात। 5 राज्यों में चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। यूपी में 7 चरण में मतदान होगा। 10 मार्च को सभी राज्यों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। 15 जनवरी तक सभी तरह की रैली पर रोक लगाई गई है। इस साल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि चुनाव तय समय पर ही होंगे। मतदाता सूची भी जारी हो चुकी है। सभी चुनावी राज्यों में सियासी हलचलें तेज हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश चुनाव की है। 403 विधानसभा सीट वाले इस प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। पहले चरण में गाजियाबाद, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मथुरा, हापुड़, खुर्जा, अलीगढ़, आगरा में चुनाव होने हैं। चुनाव में धन बल का इस्तेमाल रोका जाएगा। गैर कानूनी पैसे, शराब पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। And the first date of the issue of notification will be 14th January 2022 and which will start from Uttar Pradesh. This is the first phase of Uttar Pradesh. The issue of notification is 14th January. Last date of nominations 21st January. Scrutiny of nominations 24th January. Last date of withdrawal of candidature 27th January and date of poll 10th February 2022. This is the first phase. Now let us come to the second phase, which is a very important phase. In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in one phase, Uttarakhand in one phase, Goa in one phase. So Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Goa. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. And here the issue of notification will be 21st January. Last date of nominations 28th January. Scrutiny of nominations 29th January. And last date of withdrawal of candidature 31st January. And date of poll 14th February, that is Monday. We directed them that no illegal money, no illegal this alcohol or any freebies or drugs can be distributed. They will have to increase their efforts in this regard. We had monitored the seizures which were made by them so far. We have asked them to expedite the seizures. We have asked them to block the flow of liquor into their states which are coal bound. So a comprehensive plan has been prepared by them also. उम्मीदवारों को नामांकन ऑनलाइन दाखिल करने की वैकल्पिक सुविधा मिलेगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को अखबारों, टीवी चैनलों पर प्रचार अभियान की अवधि के दौरान 3 बार अपने खिलाफ लंबित मुकदमों की जानकारी देनी होगी। राजनीतिक दलों को यह भी बताना होगा कि ऐसी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को उन्होंने क्यों चुना। Candidates will be provided a list of such electors along with route chart and a schedule so that they may send their representative accordingly. Therefore, there is absolutely transparency as far as this absentee voter is concerned. We have also given a facility of online nomination to the candidates. This is an optional facility and we would like the candidates should use this facility so that the physical contact can be reduced and online facility can be fully utilized by the candidates who are coming for contesting the poll. Friends, another important issue is the candidates with the criminal cases. Each and every voter has a right to know the background of the candidate. Among other measures to ensure ethical elections, emphasis is also given on mandatory publicity of criminal antecedents. Candidates with criminal antecedents are required to publish information in this regard in newspaper and through television channels on 3 occasions during the campaign period. Besides this, it is also mandatory for political parties to upload on their website at the home page detailed information regarding individuals with pending criminal cases who have been selected as candidates.
along with the reasons. The political party will have to give the reasons as to why this particular candidate has been selected and no candidate without any criminal incident was selected, and benevolence is not the criteria for the same. And the details will be published within 48 hours of the selection of the candidate and not prior to 2 weeks before the first date of filing of nomination as was done earlier. डिजिटल वर्चुअल तरीके से चुनाव प्रचार करना होगा। 15 जनवरी तक किसी तरह की रैली, रोड शो और पदयात्रा नहीं होगी। नुक्कड़ सभा, बाइक रैली पर भी रोक है। कैंपेन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। घर घर जाकर 5 लोगों को प्रचार करने की अनुमति होगी। 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति और कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं। हर राज्य की विधानसभा सीट का कार्यकाल 5 साल ही रह सकता है। चुनाव पर प्रचार कराना लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित कराने के लिए जरूरी है। चुनाव ड्यूटी में लगे सभी अधिकारी ऐसे होंगे जो टीके की दोनों खुराक ले चुके होंगे। उन्हें एहतियात अतिरिक्त खुराक भी दी जा सकेगी। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। सभी राज्यों में मतगणना 10 मार्च को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। साहिबाबाद पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। उसने ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो कई राज्यों में अपराध करता था। इनके कब्जे से लूटा हुआ सामान बरामद किया गया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कई राज्यों में लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के कई सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। इन लोगों ने पिछले दिनों जींस से भरा ऑटो लूट लिया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत थाना साहिबाबाद पुलिस ने आज 8 सातिर लुटेरे पकड़े हैं, जिनसे साहिबाबाद में लूटे गए मारुति वैगन आर व एक चैंपियन गाड़ी जिसमें माल भर के जा रहा था, जिसमें जींस लदा हुआ था, इसको बरामद किया गया और इसमें इन्होंने जो घटना में असलहे प्रयुक्त किए गए थे वो सब बरामद किया गया। ये बिल्कुल सातिर हैं। ये 8 लोगों का पूरा गैंग है। इनकी अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है, जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में घटना करते थे और मर्डर, लूट, डकैती सारे अपराध इनके ऊपर दर्ज हैं। ये माल जहां से चलता था वहां से रेकी करते थे और उसका पीछा करके जहां पे इनको मौका मिलता था, सुनसान स्थान मिलता था, वहां पे घटना को अंजाम देते। एसपी सिटी सेकंड ज्ञानेंद्र सिंह और साहिबाबाद थाना पुलिस की टीम ने अंतर्राज्यीय स्तर पर लूट की दर्जनों वारदातों को अंजाम देने वाले लुटेरों के गैंग को पकड़ लिया। पुलिस ने कई लूट का खुलासा करते हुए इनके कब्जे से जींस से भरे ऑटो और दूसरा सामान बरामद किया है। इनमें वैगनार और हथियार भी शामिल है। पकड़े गए बदमाशों के नाम साजिद, राहुल, फैजल, दानिश, राहुल शर्मा और टीपू सुल्तान है। पुलिस के मुताबिक यह गैंग हरियाणा, यूपी, दिल्ली, एनसीआर सहित कई राज्यों में लूट और चोरी की दर्जनों वारदातों को अंजाम दे चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। पंजाब में प्रधानमंत्री का काफिला रोके जाने की घटना को लेकर भाजपा कार्यकर्ता गुस्से में हैं। गाजियाबाद में शास्त्री नगर इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। गाजियाबाद के शास्त्री नगर इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। ये लोग पंजाब रैली में जाते समय पीएम के काफिले को रोके जाने का विरोध कर रहे थे। भाजपा कार्यकर्ताओं का मानना है कि पीएम का काफिला रोके जाना पंजाब की कांग्रेस सरकार की साजिश थी। पीएम की सुरक्षा में चूक सामान्य घटना नहीं है। इन लोगों ने कांग्रेस के विरोध में नारेबाजी भी की। सोनिया गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। स्वीप अभियान के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मोदीनगर में भी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां नए मतदाताओं को शपथ दिलाई गई। मोदीनगर के मॉडर्न एकेडमी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। दरअसल एडीएम ऋतु सुहास स्वीप अभियान के तहत मतदाता जागरूक कार्यक्रम चला रही हैं। इसमें अलग अलग स्कूलों में कार्यक्रम चलाकर मतदान की शपथ दिलाई गई। एहसास महिला समिति द्वारा यहां पहली बार मतदाता बने युवाओं को भी शपथ दिलाई गई। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए
निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी समिति के अध्यक्ष अनुप्रीत कौर ने शपथ दिलाई। जूनियर विंग टीम ने नए मतदाताओं को जागरूक किया। मोदीनगर की एसडीएम शुभांगी शुक्ला के नेतृत्व में लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। पुलिस कार्रवाई के विरोध में आज बस संचालकों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। संचालकों का आरोप है कि परमिट होने के बावजूद पुलिस उनके वाहनों को नहीं चलने दे रही है। मैं गाजियाबाद बस एसोसिएशन में अपनी बसें चलाता हूं। कोरोना काल में पिछले 2 सालों से हम ट्रांसपोर्टरों का इतना बुरा हाल है कि हम लोग अपनी ज़मीनें बेच के सरकार को टैक्स दे रहे हैं। हमारा बच्चों का लालन पालन बिल्कुल ऐसी अवस्था में आ चुका है कि हम भीख मांगने के कगार पे हैं। और ये जो प्रशासन है ये हमारा इतना उत्पीड़न कर रहा है। शहर के बीचों बीच से बहुत सारे ऐसे डग्गामार वाहन हैं जिनकी छतों पे ओवरलोड वाहन के ऊपर सेल टैक्स की चोरी करके सामान को लेके जाया जाता है और प्रेशर हॉर्न पे हाथ रख के सड़क के बिल्कुल बीचों बीच, शहर के बिल्कुल दिल के बीच में से गाड़ियां गुजरती हैं, जहां प्रत्येक पॉइंट पे टीएसआई भी होता है और ट्रैफिक को संभालने वाले ट्रैफिक कर्मी भी होते हैं। लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान क्यों नहीं देता? क्योंकि वहाँ से अवैध उगाही के रूप में एक बहुत मोटा पैसा प्रशासन के पास तक जाता है। एसएसपी साहब का एक आदेश हुआ कि डग्गेमार वाहनों को बंद किया जाए। डग्गेमार वाहनों की आड़ में जो गाजियाबाद में 1989 में परमिट दिए थे आरटीए ने और एसटीए ने, जो परमिट वैध हैं, वैध परमिटों को भी डग्गेमारी के नाम पर उनका इतना उत्पीड़न किया जा रहा है कि बस अड्डे से निकलते ही गाड़ी को तुरंत एक दरोगा सिपाही आते हैं और ले जाके और थाने में बंद कर देते हैं। गाड़ी 10-15 गाड़ी सीज कर दी और कोई कागज पूरे होने के बाद कोई प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा। ये हमारा पूरा उत्पीड़न हो रहा है। क्या कहा जा रहा है आपको? ये कहा जा रहा है तुम्हारे परमिट बेकार है, गाड़ी खड़ी मत करो। एमएमएच कॉलेज में गेस्ट लेक्चर का आयोजन किया गया। इससे पहले छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसमें वक्ताओं ने ई रिसोर्सेज को लेकर विचार रखे। एमएमएच कॉलेज में गेस्ट लेक्चर का आयोजन किया गया। यहां ई रिसोर्स के उपयोग और इसके लाभ पर चर्चा की गई। इसकी शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। वक्ताओं ने कोविड पैंडेमिक के दौरान ई रिसोर्स के इस्तेमाल पर विचार रखे। एजुकेशन एक ऐसी चीज है, शिक्षा, कि आपके सारे अरमान पूरा करती है, सारे डेवलपमेंट, सारे विकास, सारा सब कुछ देती है। आप साइकिल से लेकर के और ऊंची से ऊंची गाड़ी आप ले सकते हैं। सिर्फ एक गाड़ी हो या जो भी आप डेवलप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अपने समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाती है। आपका जो क्या नाम है स्टैंडर्ड है जो है उसको डेवलप करती है। समाज में रेपुटेशन आपका जो स्टेटस है उस... वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का दावा है कि बिजली बिल का मामला सबसे पहले उन्होंने उठाया था, जिसे लागू करने के लिए यूपी सरकार मजबूर हुई है। हमने पहल की, हमने मुद्दों की बात की है। इन मुद्दों पे, इन विषयों पर दूसरी पार्टियों को भी गंभीर करने पे हमने मजबूर किया। मैं आप सबको वादा करता हूं, आप सब जिम्मेदार लोग हैं। जो कुछ आने वाले समय में अगर कोई परिवर्तन सरकार लाती भी है, इससे ज्यादा कुछ घोषित करती है, मेरा वादा हम फिर भी दोबारा रिवाइज करके अगर सरकार 10 देगी तो 11 हम देंगे। कांग्रेस चुनाव में बेरोजगारी को भी मुद्दा बनाएगी। पार्टी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भर्ती में हो रही गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। उन्होंने पेपर लीक मामले में सरकार पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में भर्तियां लंबित हैं। नौजवान सड़कों पर है, संघर्ष कर रहा है अपनी भर्तियों के लिए। सरकार बेरोजगारों के साथ, उनके भविष्य के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। पिछले काफी समयों से जितनी भी भर्तियां आ रही हैं, कहीं ना कहीं उसके पेपर आउट हो रहे हैं और लोगों के, खासकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम निरंतर जारी है।
सहारनपुर जिले की बेहट थाना पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। एसएसपी आकाश तोमर ने यह जानकारी दी। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से कई हथियार भी बरामद किए हैं। सहारनपुर पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। मिर्जापुर रोड पर निर्माणाधीन गुरुद्वारे के सामने बाग में हथियार बनाए जा रहे थे। पुलिस ने सरवर और पंकज नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 12 बोर की 2 बंदूक, 2 तमंचे, 315 बोर के 2 तमंचे, 5 अधबने तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। एसएसपी सहारनपुर आकाश तोमर ने यह जानकारी दी। द्वारा सूचना मिली कि सिंचाई विभाग के खंडार थाना बेहट के पास कुछ लोग जो है अवैध तमंचे बना रहे हैं। इस सूचना पर विश्वास करके वहां पर हमारी मौके पर टीम गई, जहां से उन्होंने करीब 6 असलहे बने हुए प्राप्त हुए तथा उसकी सामग्री फैक्ट्री की प्राप्त हुई, जिसमें से 2 तमंचा जो है 315 बोर, 2 12 बोर और 2 बनी बंदूकें प्राप्त हुई हैं तथा 5 अधबने तमंचे भी प्राप्त हुए तथा उसके बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने भेजा जा रहा है। क्या और भी लोग हैं इसमें शामिल? नहीं, अभी तक 2 ही लोग हमारे सामने आए हैं। फिर भी इसकी तहकीकात और की जाएगी। अगर कोई ऐसे अन्य लोग आते हैं तो उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर गति पकड़ रही है। लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार कई तरह के प्रतिबंध लागू कर चुकी है। अब मास्क नहीं पहना तो गाड़ी में ईंधन नहीं मिलेगा। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से प्रदेश में पालन कराया जाएगा और अब पेट्रोल पंप, डीजल पंप जो हमारे हैं, वाहन चालक अगर मास्क नहीं लगाए हैं तो उन्हें डीजल पेट्रोल न दे, ऐसी सूचना हम करवा रहे हैं। मास्क की जुर्माने की राशि के ये सभी के सख्ती पर विचार किया जा रहा है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।